خوش رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کیا کیا لگائے جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے کہ میں خوش ہوں۔ خوش رہنے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت سی جذباتوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور بہت سی باتوں کو اپنے اندر ہضم کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کے اندرونی سکون، اندرونی جو خوشی ہوتی ہے نا وہ آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو جتلانا، ہر کسی کو آپ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی لائف میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی لائف میں اچھا ہو رہا ہے، آپ کی لائف میں برا ہو رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں، لوگوں کے آگے آپ نے ہر حال میں خوش رہنا ہے، چاہے آپ کے اندر جو بھی ہے۔ لوگوں کے آگے جواب دینا، لوگوں کو بتانا کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کیا ہے، میرے جذبات کیا ہیں، میرے اندر گہرائی کیا ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ جو آپ کی خاموشی ہے نا وہی آپ کا سکون ہے۔ لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ کو بولیں گے۔ دیکھیں، حسد کرنے والے کوئی باہر سے نہیں آتے، گھر میں ہی پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کو جو دیکھ دیکھ کے ان کا سکون برباد ہوتا ہے وہ انہیں کرنے دے۔ جب آپ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیں گے، اپنے آگے آپ اپنے آپ کو بڑھاتے رہیں گے، ایک دن آپ زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ کہتے ہیں نا کہ خاموشی ہر انسان کی نا دوا، ہر مرض کی دوا ہے۔ دیکھیں، جب دوسروں کے آگے بول 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 کے آپ تھک جاتے ہیں تو کیا کسی نے آپ کا احساس کرنا ہے؟ نہیں کرنا۔ جب آپ اپنا ہی خون سکھاتے ہیں، آپ اپنا ہی خشک ہوتی رہتی ہیں، ڈپریشن کا مریض ہو جاتی ہیں، انزائٹی ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہو جاتی ہے، کوئی آپ کو میڈیسن لے کے دینے والا بھی نہیں ہوتا، تو کوشش کیا کریں جتنی خاموشی ہو سکے نا، جتنی خاموشی ہو سکے اتنی خاموشی اختیار کریں۔ دوسروں کی باتوں کو ہضم کرنا سیکھیں، دوسروں کو اگنور کرنا سیکھیں۔ جو آپ کو پسند نہیں کرتے آپ ان کے پاس بیٹھیں بھی نہیں۔ جب آپ ایک دفعہ کوشش کریں گے، اپنے عمل پہ کامیابی حاصل کریں گے تو آپ اپنے اندر ایک سکون محسوس کریں گے۔ دیکھیں نا، جن کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، جن کے پاس بیٹھنے سے آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، وہ لوگ آپ کو اندر ہی اندر توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اچھا ہے نا کہ دوسروں کے ہاتھوں سے ٹوٹنے سے اچھا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ہی ٹوٹ جائیں۔ جب ایک دفعہ ہم اپنے آپ کو، اپنی عمل کریں گے، اپنی خاموشی کو، اپنے جذبوں کو، اپنی ہنسی کو، اپنی خوشی کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے تو دوسرے بھی سمجھ جائیں گے کہ اس کو ہماری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ ہمیں کوئی جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی۔ تو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے جو زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ خوشی ایسے نہیں ملتی، خوشی کو آپ نے تلاش کرنی ہوتی، خوشی کوئی آپ کی محروم منت نہیں ہوتی کہ جسے چاہے جب چاہے مل جائے۔ جس طرح سے ایک عورت ماں بنتی ہے اور اسے جو خوشی ہوتی ہے، جو اس کے جذبات ہوتے ہیں، جو اس کے خیالات ہوتے ہیں نا، وہ ایک ماں ہی جان سکتی ہے، وہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے جو بھی ہماری انگزائٹی، ڈپریشن ہوتی ہے نا، اس کو ختم کرنے کے لیے صرف یہی ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں اور چپ رہنا سیکھیں۔ جب آپ دوسروں کی باتوں کو اگنور کریں گے اور اپنے آپ کو کاموں میں مصروف رکھیں گے تو زندگی بہت ہی ایزی اور آسان ہو جائے گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں۔ تو گھنٹوں کا کام منٹوں میں اور منٹوں کا کام سیکنڈ میں کیسے ہوتا ہے، آج میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی۔ اور میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کی ہر وہ کوشش کرتی ہوں جو میں کر سکتی ہوں۔ میں اپنے آپ کو بہت ہی پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں ان عورتوں میں سے ہوں جو ڈیلی بیسس پہ اپنے گھر کا کام، اپنی چھوٹی موٹی چیزوں کو سمیٹنا، اپنی ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا اور اپنے گھر کو فل ڈے مینٹین رکھنا۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو، میرے ہسبینڈ کو ہر چیز ٹائم پہ مہیا تو میں اپنے کام کی روٹین نا ڈیلی بائی ڈیلی نا چینج کرتی رہتی ہوں۔ تو آج میں نے سچی اتنی کوشش کی، اس کے باوجود میں 1 گھنٹے میں فری ہو گئی، کیونکہ میں نے اپنی ٹائمنگ اپنے حساب سے مینج کی تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا 1 گھنٹے کا، اور اس کے بعد میں نے ناشتے کے بعد 1 گھنٹے میں پورے گھر کو صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین کر لیا۔ اور سچی اتنی خوشی ہوئی نا مجھے، کیونکہ میں جلدی سے فارغ ہو گئی۔ حالانکہ میں نے مشین بھی لگائی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی میرا کام بہت جلدی ہو گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جب آپ سوچتے ہیں نا کہ میں نے اتنے ٹائم میں اتنے چیزوں کو مینٹین کرنا ہے، اپنے گھر کو اس طرح سے دیکھنا ہے، تو وہ چیزیں آپ کی ہوتی جاتی ہیں۔ بس آپ کی مائنڈ کی گیم ہوتی ہے، بس آپ نے وہی چلانی ہوتی ہے، اور آپ کے گھر سارا کام صاف ستھرا اور گھر بھی نیٹ اینڈ کلین صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ جلدی صبح آتی ہے نا، اتنی جلدی ہی صبح چلی بھی جاتی ہے۔ تو اس صبح کو نا آپ نے پروڈکٹیو اور ایکٹیو بنانا ہے۔ تو میں کیا کیا، میں نے صبح آملیٹ کی تیاری کرنا سٹارٹ کر دی ہے، پیاز کاٹے،
टमाटर काटे, हरी मिर्चें काटी, तो इसी तरह से मैंने ऑमलेट बना लिया। तो ये बेसिक चीजें होती हैं। और फिर साथ में पराठे बना लिए बच्चों, बेटी को, और बेटा मेरे साथ जाता है, उसको ट्यूशन भेज आई थी। आपके सामने दिखाऊंगी कि किस तरह से वो भी कहते हैं कि हमारी भी पिक्स ले मम्मा, हमने भी वीडियो में आना है। ना आपसे बहुत से लोग मिलते हैं जो आपके बहुत करीब होते हैं और जिनके बगैर ना हम रहना तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और बास टाइम ना हर चीज को हमने देखना होता है। जरूरी नहीं है कि जो भी रिश्ता हो, जो भी कि जितना करीबी हो, जितना लिहाज करने वाला हो, जरूरी नहीं जितना आप उसका लिहाज करते हैं वो भी आपका उतना ही करे। लोग वक्त के साथ आपको आईना दिखा देते हैं और आईना ये बहुत अजीब किस्म का होता है और ये बर्दाश्त से भी बाहर बास टाइम चला जाता है, क्योंकि लोगों के खाने के दांत और होते हैं और चबाने के दांत और होते हैं, जो आपको ना वक्त के साथ सब चीज महसूस करवा देते हैं। आपके अंदर हर चीज जमा होती रहती है। जब वो जमा हो जाती है तो पहाड़ बन जाती है, और जब पहाड़ बनते ना वो फट जाते हैं। तो कोशिश क्या करें, अपने जो पहाड़ है ना इसको अपने अंदर रखें। देखिए हमारे अंदर जो चीज है ना वो हमारे अंदर ही रहती है, ठीक है। जब हम दूसरों से डिस्कस करते हैं, दूसरों से बात करते हैं, तो वो चीज ना बेमायनी हो जाती है। कोई आपका एहसास नहीं करता कि इसके अंदर क्या जज्बे हैं, क्या खुलूस है, हमारे लिए क्या मोहब्बत है। तो लोगों को बस चटखारा चाहिए होता है, वो चटखारा लेते हैं और आपसे अपने आपकी जो बातें होती हैं वो निकलवाते हैं और साइड पे हो जाते हैं और आप पे बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक आप अपने अंदर कंट्रोल नहीं रखेंगे, अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं रखेंगे, जरूरी नहीं है कि ये औरतों के साथ ऐसा होता है, बास टाइम आदमियों के साथ भी ऐसा हो रहा है, लोग उन्हें उल्लू बना रहे होते हैं। तो ये जिंदगी का दस्तूर है। जब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, हर बात दूसरों से शेयर कर लेंगे, जैसे लड़के दोस्तों से शेयर कर लेते हैं, अपनी माँ से शेयर कर लेते हैं और बीवी को बताना पसंद नहीं करते, यहीं से वो गलती करते हैं। जो हम सफर होता है, जो साथी होता है ना, उसको तो इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन दूसरों को हर चीज, हर छोटी से छोटी बात, हर बड़ी से बड़ी बात बताना पसंद करते हैं। तो ये घर का नुकसान जो होता है ना, यही चीज होती है। जब आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, जब गाड़ी के दो पहिए होते हैं वो साथ चलते हैं, तभी मोटरसाइकिल चलती है ना, दो पहियों पे ही चलती है, साइकिल भी दो पहियों पे ही चलती है। तो वो क्यों चलती है? एक दूसरे को सहारा होता है। इसी तरह से मियाँ बीवी जो होते हैं वो भी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे का सहारा होता है। तो कोशिश किया करें, एक दूसरे पे भरोसा किया करें। और बाद ऐसी चीजें होती हैं जो हमें वाकई छुपानी पड़ती हैं। जैसे एक लड़की अपने घर की हर बात अपने हस्बैंड को बताती है और जब वक्त आता है तो वो ये हस्बैंड क्या कहते हैं, जूते गीले कर करके उसके मुंह पे मारता है कि तुम्हारे घर में तो ऐसा है, तुम्हारे घर में तो ऐसा है। जरूरी नहीं कि हमने हर चीज अपने हस्बैंड से डिस्कस करनी होती, और बाज टाइम हमें खामोशी भी रखनी पड़ती है। हम अपने मोबाइल में, हम अपनी चीजों में अपने घर वालों की चीजें रखते हैं जो हमारे लिए बहुत मुश्किल का बाइस बनती। कोशिश किया करें अपने घर वालों को अपने तक रखें, दूसरों पे हैवी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप दूसरों पे खुद को मुसलत करेंगे ना, दूसरे आप पे उतने मुसलत होते जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अपनी फैमिली को अपने तक रखें, चाहे आप गैर कहें चाहे अपने, कोई आपका एहसास नहीं करेगा, कोई आपको समझेगा नहीं। तो यही बातें छोटी छोटी होती हैं कि हम लड़कियां परेशान होती तो अपनी माँ से ही डिस्कस करती हैं, और माँ अपना हाल क्या बना लेती है। बेटी की दुख दर्द में, तकलीफ में सोचते सोचते उसकी जान चली जाती है कि मेरी बेटी के साथ क्या हो गया, हमारा गलत डिसीजन जो हमारी बेटी को बर्बाद कर गया। और बेटी को भी समझना चाहिए कि वक्त के साथ साथ अपने माँ बाप का एहसास करे। हर छोटी से छोटी बात जरूरी नहीं है कि माँ बाप को बताए और झगड़ा फसाद अपने घर में डाली रखे। तो कोशिश करे कि अपने आप को समझे, अपने रवैयों को समझे और खामोश रहना सीखे। मेरी बहनें, जितने आप अपने रिश्ते को बचाना चाहती हैं, अपने आप को अपने बच्चों के लिए कुर्बान करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको खामोशी जरूर अख्तियार करनी होगी। जब तक आप खामोश नहीं रहेंगे, लोगों की बातों को बर्दाश्त करना नहीं सीखेंगे, तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो ऐसा करें, अपने लिए ना इनकम का कोई ना कोई सोर्स जरूर रखा करें। जो औरतें दूसरों पे मुनसिर हो जाती हैं वो ना बेवकूफ़ी करती हैं। मैंने भी ऐसा ही शायद किया। मेरी अच्छी खासी जॉब थी, लेकिन मैंने शादी से पहले ही छोड़ दी थी, जो मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब पछताती हूँ कि काश मेरे पास जॉब होती तो मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। कि देखें, कोई भी आपको आपकी जरूरत के मुताबिक कोई चीज नहीं देता। अगर कोई देता भी है तो 10 दफा सुना के देता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ना बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। छोटी तो नहीं होती, बास टाइम तो बहुत बड़ी हो जाती है। अच्छा, यहाँ ऑमलेट की तैयारी हो रही है। यहाँ मैंने 2 प्याज काट लिए थे,
उन्हें बारीक बारीक काट के अच्छी तरह से मैं इसे हल्का सा ऐसे फ्राई करूंगी। फिर मैं इसमें जो मिर्च मसाले हैं वो डाल दूंगी, फिर मैं टमाटर डाल दूंगी, फिर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। फिर मैं ना प्याज को थोड़ा सा गला लूंगी, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और प्याज भी सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से जो प्याजों में स्मेल होती है, आपको पता है अक्सर किचन में जाए ना किसी के, तो प्याजों की इतनी स्मेल हुई होती है ना कि बस बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। वो ऐसा होता है जब हम खाते हैं ना तो मुंह में ऐसे क्रच क्रची और प्याज की स्मेल सी बन जाती है, तो वो प्याज को गलाते नहीं है। प्याज ज्यादा, ऑमलेट में प्याज ज्यादा गला हुआ भी ना हो और ज्यादा क्या कहते हैं वो क्रंची क्रंची ना हो, बस हल्का सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा होना चाहिए जो स्मेल बस पैदा ना करे। और बास टाइम तो लोग जिस जगह पे खा रहे होते हैं वहां भी स्मेल हो रही होती है। और इस तरह से मेरे तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो आपका ऑमलेट बहुत जबरदस्त किस्म का हो जाएगा। मैंने बेसिक से जो किचन में मसाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया और कलौंजी इसमें डाल के ना इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। जो मेरा खाना सामान सारा वो मिक्स हो गया। इसके बाद मैंने ये अंडा इसमें डाल दिया और मैंने अंडा इसके अंदर ना ऐसे ही स्टीम पे बना लेती हूँ और जो खाने में भी बहुत मजे का और टेस्टी ऐसे लगता है। अच्छा, मैंने इसमें बाद में अंडा साइड पे निकाल के ना अपने बच्चों को खिला लिया था। हस्बैंड कहते हैं कि अंडा क्यों निकाला है साइड पे, क्यों किया, साथ मिक्स कर लेती। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने बच्चों का भी तो पेट भरना है। एक माँ वही होती है जो अपने साथ अपने बच्चों को भी देखती है। अच्छा, यहाँ मैं अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ और ये मेरे बेटे का ना जो है ना काम का ये रेड़ा सा बनाए हुए ये साथ लेके जाता है। अच्छा, मैंने बच्चों को छोड़ने के बाद घर आई और घर में तकरीबन 8 बजे का टाइम था। इसके बाद मैंने अपने टाइम लगाया और 9 बजे तक मैंने अपने पूरे घर की साफ सुथराई नीट एंड क्लीन साफ सुथरा कर लिया। बस मैंने किसी से बातचीत नहीं की, किसी की तरफ देखा नहीं है। और देखे या मेरी बेटी कहती है कि मम्मा आप फ्लावर की भी लें, ये साथ माल्टे का दरख्त है इनकी बाजी का, तो ये भी मुझे कहती मम्मा इसकी पिक्स लें। और ये सामने वाले घर में ना मुर्गा बैठा था, कहती मम्मा इसकी भी लें। मैंने कहा चलो भी आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। और यहाँ मैंने स्टार्ट किया, मैंने पहले अपने रूम की सफाई की और फिर मैंने पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह इस टाइम मैं सारा लगा चुकी थी। मैंने कहा चलो पोछा लगा लेती हूँ। अच्छा, मेरे से ना डस्टिंग अगर मैं पहले कर लूं तो मेरे से हो जाती है नीट, बिल्कुल साफ सुथरी जो होती है ना, डीपली क्लीनिंग होती है वो कर लूं, वो भी मेरी डस्टिंग डीपली भी हो जाती है। रफली डस्टिंग करना चाहें रफली भी हो सकती है। और जिस दिन मैं सोचूं कि मैं सफाई करने के बाद अपनी सारी डस्टिंग वगैरह करूंगी, मेरे से नहीं होती। और पता नहीं क्यों औरतें अक्सर ना डीप क्लीनिंग बाद में करती, लेकिन मेरे से नहीं होती। अच्छा, यहाँ फिर मैंने किचन वगैरह साफ कर, उसके बाद मैंने नीचे फर्श पे पोछा लगा दिया। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये सारे काम ना अपने 1 घंटे में कंप्लीट किए। देखिए, मैंने सहन, मेरे फर्श, अंदर बाहर हर चीज तकरीबन 8 बजे से मैंने स्टार्ट किया नाश्ते बच्चों को छोड़ने के बाद। बस मैंने ये क्या है कि मोबाइल पे मैंने गाने लगा दिए और मैंने अपने काम ना करने स्टार्ट कर दिया। और यहाँ मेरी तस्वीर रखी हुई थी, मैंने कहा चलो इसको भी इसकी जगह पे रख दूं। पर्दे वगैरह सारे मैंने गिरा दी और इस टाइम मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन हो रही थी। बस मैंने छोटा सा ये काम किया कि मैंने साथ में मोबाइल पे म्यूजिक लगा दिया था, वो भी सुनती रही थी और अपना काम भी करती रही और दिमाग में जो इधर उधर की बातें हैं वो भी नहीं भटकी और मेरा काम भी बहुत जल्दी हो गया।